So we are starting with a new lesson today, that is photosynthesis. Okay. Now in this 11th standard level, by now you know very well that photosynthesis is not a new term for you at least, right? You know very well that photosynthesis hota kya hai, right? So if you split up the word, we'll start right from the scratch. If you split up this word, so you can say photosynthesis. पहले word आएगा photo, which means light. Okay, and synthesis means formation. That's a simple meaning if you split up the word. So basically this photosynthesis is a metabolic physiological reaction which takes place only in the case of green plants. ठीक है, तो photosynthesis का सबसे important point पहले क्या याद रखना है कि this is a physiological process which occurs only in green plants. Besides that, there are certain bacteria which can also carry out photosynthesis. Okay, so उनका भी process ज़्यादा different नहीं है ultimately, but here we will focus mainly on the green plants. Okay, see, I am mentioning green plants specifically because there are very few exceptional plants जिनमें वो pigments नहीं होते that they do photosynthesis. So green plants बोलना ज़्यादा important है. Okay, or you can say the green parts of plants. Okay, so overall, you know at least one thing, that photosynthesis is the only process by which plants are able to manufacture their own food. And we know that the plants are said to be autotrophs. Autotrophs का मतलब है, auto का मतलब है self, trophic मतलब feeder. So when you say self feeder, it means they do not depend upon any other organism for their food or their nutrition. They are able to prepare their own food. वो खाना मांगते नहीं फिरते, अपना बना लेते हो. So they are able to prepare their food using raw materials. So कौन से raw material use करते हैं वो? Sunlight. Then and minerals from soil. okay. Chlorophyll. Yes, chlorophyll is very important. And one more. Two more, in fact. Two more. Water. And which other? Is there any gas which is required? Carbon dioxide. Correct. Okay, so four ultimately main requirements of photosynthesis वो है carbon dioxide, water, sunlight. In short, light बोल सकते हैं, but for in the wild, in the nature, plants depend upon sunlight. Okay, and the chlorophyll pigment. इन चारों को use करके there is a reaction which takes place. Okay, this reaction is the general reaction as you can see. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? You can see balance part अभी साइड में रखते हैं. You can see carbon dioxide reacts with water in the presence of light and chloroplast. So you get this compound. इसको क्या बोलेंगे? C6H12O6. What is the name of this compound? Glucose. Glucose. तो हम लोग जब common as a layman term बोलते हैं कि plants prepare their own food. So the food which they prepare, the immediate food which they prepare is this glucose. इसका बाद में conversion होता है as per the requirement. Okay, and then as a byproduct, some more amount of water is given out, and even oxygen is released as a gas. Okay, so carbon dioxide with water in the presence of light and chlorophyll, okay, is able to give you glucose and oxygen and water. So at the end of this lesson, we are going to see the overall significance of photosynthesis. But यहाँ पर एक point हमें notice करना है कि no doubt the food is manufactured by the plants. And secondly, the most important significant point about photosynthesis is that this is the only process which is naturally able to release oxygen gas. Correct? And
अगर बेसिक स्कूल लेवल में जो पढ़ा हुआ पॉइंट है, इफ यू रिमेंबर दैट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, याद है एयर के अलग अलग गैसेस का कंपोजिशन, विच इज द गैस विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एयर? कार्बन डाइऑक्साइड No. और नाइट्रोजन। Nitrogen, yes. The most abundant gas is nitrogen, approximately 78%. सबसे ज्यादा तो वही है. Okay. Second most abundant is after nitrogen. Very important. ऑक्सीजन। Yes. Second most abundant is oxygen, 21%. Okay. So 78 nitrogen, 21 oxygen. कितना हुआ? 99. So 99% of the air is containing nitrogen and oxygen. Okay. बाकी जो 1% है, that is a mixture of all the other gases, in which carbon dioxide is around 0.03%. And then there are other gases, including water vapor. Okay, you can say noble gases. ये सब मिलाकर बाकी का amount होते हैं. But ये जो ratio है atmosphere का, this is the best ratio for sustaining life. हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट 0.03%, बट इतना ही रहना बेटर है. प्लस माइनस वेरी लिटिल अमाउंट हियर एंड देयर इज अंडरस्टूड. ओके, अभी 21 का से 20 तक आया, ठीक है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया तो इट विल बी डेंजरस फॉर लाइफ. सो नाउअडेज यू नो वेरी वेल व्हाट इज हैपनिंग. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर इंक्रीजिंग, and that is happening at the cost of oxygen. तो हम लोग जब पेड़ काटते हैं, अगर लेमैन टर्म्स में बोला जाए, when you cut plants, in a way you are reducing the amount of oxygen released into the air. तो ये रिप्लेनिश करना जरूरी है. This is the only reaction which is able to keep a balance of both the gases. वो सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं. ओके, तो फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? सी द थिंग्स दैट आर रिटन इन इटैलिक्स. सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, ब्रैकेट में लिखा है ग्लूकोज, तो अल्टीमेटली इट इज कार्बोहाइड्रेट्स, बट पहले ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ओके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the help of solar energy trapped by the pigments like chlorophyll. तो ये जो definition है, this has to be learned as it is, and it explains everything in the reaction. Okay, तो फोटोसिंथेसिस का हमें ब्रॉड आइडिया पता चल चुका है कि ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड chlorophyll, all these four, if they are present in a plant cell, they are able to do photosynthesis and they manufacture glucose. Okay, but there are some more words when it comes to photosynthesis that you must understand. Okay, I'll write it here. Yeah, see, when you talk about photosynthesis, okay, yeah, when you talk about photosynthesis, the important word is it is a redox reaction. केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? redox reaction, that means it is a reaction involving, don't worry, we are not going into details of chemistry over here. Okay, redox का मतलब है a reaction in which there is reduction as well as oxidation, उसको बोलते हैं redox. तो photosynthesis में दोनों हो रहा है. कैसे हो रहा है? You see, notice the reaction. Carbon dioxide on the reactant side, जिसमें है कार्बन ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स. ओके, एंड यहाँ पर है C6H12O6, where you have carbon, oxygen, and along with that there is hydrogen. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जब ग्लूकोज बन रहे हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? रिडक्शन. करेक्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. दैट वाज अ वाइल्ड गेस. बराबर. समझ में आ रहा है? Okay, but remember, addition of hydrogen
is reduction. Okay, removal of oxygen is also reduction. Reduction. And इसका जो exact उल्टा है, like addition of hydrogen, sorry, addition of oxygen. Oxygen. Yes, and removal of hydrogen is oxidation. So same thing. Notice what is happening to water. H2O, उसमें से बाय प्रोडक्ट आ रहा है only O2. That means hydrogen is removed. तो मतलब CO2 का हुआ रिडक्शन, वाटर का हुआ ऑक्सीडेशन in the same reaction. That's why it is said to be a redox reaction. ठीक है, redox reaction है, but इसमें जो main part है, that means the main purpose why this photosynthesis is going on, जिसमें हमें plants are doing this not for oxygen, it is doing this for the glucose. इसीलिए हम लोग ग्लूकोज को प्रोडक्ट बोल रहे हैं, ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट बोल रहे हैं. ये रिएक्शन करने का जो एम है वो प्रोडक्ट बनाने का, ग्लूकोज, बट इन दैट प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन एज अ बाय प्रोडक्ट. So if you don't consider the byproduct part, then this reaction is only reduction, because carbon dioxide is reduced to this one, glucose. But उसके साथ साथ वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, that's why redox बोलना भी ठीक है. Got it? At the same time, now this one overall is an एंडरगोनिक रिएक्शन. ओके, ये सुना है कभी? एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक, ऐसे दो वर्ड्स होते हैं. एंडरगोनिक का मतलब है वेयर इट इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी. तो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. ओके, किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अगर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता हो तो वी कॉल इट एंडरगोनिक. इट इज यूजिंग सम एनर्जी टू कैरी आउट दिस रिएक्शन. दैट्स द मीनिंग ऑफ एंडरगोनिक. ओके, तो जब हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी को यूटिलाइज करें, तो सेल के अंदर एनर्जी मींस व्हिच मॉलिक्यूल? We call some molecule as the energy currency of the cell. हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ, molecule है वो. नहीं, That's the most common confusion among the students. Molecule पूछो तो mitochondria बोलते हैं. Mitochondria तो cell organelle हुआ ना? हाँ. Which is the molecule energy currency? ATP. जाता है ATP, adenosine triphosphate. Okay, तो इसका utilization होगा. That's why it is endergonic. One more word. This reaction is also said to be anabolic. Okay, ऐसे दो वर्ड है, anabolic, catabolic. Anabolic का मतलब है it is a constructive process या manufacturing process. Okay, that means some raw materials are used and a bigger molecule or a product is manufactured. इसलिए उसको बोलते हैं constructive या manufacturing or anabolic process. So these three words we can use for describing photosynthesis: redox, endergonic and anabolic. समझा? Definition, overall reactions are clear. ठीक है? Okay. So now let's come to this point. See this. Atmosphere में कितना percentage carbon dioxide, as we said, 0.03%. ठीक है? तो ये हमें लगता है छोटा नंबर, 0.03, hardly anything. But पूरे atmosphere of the earth में this comes to around 2200 billion tons of carbon dioxide. Getting it? So at present approximately अगर पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो there is around 2200 billion tons of carbon dioxide. Okay, and even the, ये हम लोग एयर की बात कर रहे हैं,
there is carbon dioxide dissolved in the water also. तो oceans में सबसे ज्यादा ecology में there is a term called productivity. Okay, we are going to see that in that other lesson. So productivity का मतलब क्या हुआ कि whatever amount of chlorophyll pigments are present, उसको use करके कितना food बना सकते हैं. तो oceans में, because oceans are the largest ecosystems on the earth. Okay, पूरे अर्थ में ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, 70% वाटर बोलते हैं, तो उसका मेजर अमाउंट है ओशंस. एंड ओशंस कंटेन मेनी प्रोड्यूसर्स, इवन द वेरी टाइनी माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स वो ओशंस में होते हैं. तो उनका अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द ओशंस, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आइदर डिसॉल्व्ड गैस और कार्बोनेट्स. ओके, तो ये ओशंस एंड द एयर, इन दोनों में जितने कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट प्रेजेंट है एनुअली, दैट मींस एवरी ईयर about 70 billion tons of carbon is fixed by the green plants. Approximately in the entire world, whatever green plants are there, in an year when they carry out photosynthesis, there is a fixation. See, carbon dioxide का conversion into glucose, उसको fixation करके मानते हैं. ओके, कि एयर का गैस को हम लोग एक मॉलिक्यूल बना के फिक्स कर दिया. तो दैट मच अमाउंट ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स एनुअली, 70 बिलियन टन्स. ओके, और है कितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में? 2200 बिलियन टन्स. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये नंबर्स देखकर समझ में आ रहे हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है कितना और कितना उसको फिक्स कर पाते. ओके, तो अभी इससे हमें अंदाजा मिल रहा है कि इफ यू आर एबल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द फॉरेस्ट कवर या इंक्रीज द प्लांटेशंस, सो व्हाट विल हैपन, ये जो 70 बिलियन टन्स है ये वैल्यू ऊपर जाएगी. ओके, ऑब्वियसली वी डोंट वांट अ सिचुएशन वेयर ऑल द 2200 बिलियन टन्स आर फिक्स्ड. तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही नहीं, एंड दैट कैन नेवर बी पॉसिबल आल्सो. बट एटलीस्ट एक रेशियो में तो मेंटेन रखना, बिकॉज जितना यहाँ फिक्स होगा उतना ही ऑक्सीजन रिलीज होगा. करेक्ट, यू कैन से दिस जनरल रिएक्शन अभी जो हमने देखा कि फॉर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर आर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन आउट. बैलेंस्ड करके देखते हैं, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है उतना ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस. तो अभी जिस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट्स की कटौती कर रहे हैं, सो व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, ये 70 बिलियन टन ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गेटिंग इट. तो उतना ही हमें ऑक्सीजन भी कम मिल रहा है. एंड ऑक्सीजन को यूज करने वाले बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज ऑक्सीजन को प्लांट्स खुद भी यूज करेंगे. एंड द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज इन रेस्पिरेशन, एंड दैट्स अ प्रोसेस व्हिच इज कॉमन for every living organism except for some very few bacteria जो anaerobic respiration करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. All the other organisms they use oxygen during respiration, including human beings. तो बाकी animals, okay, even plants, human beings, many microorganisms, fungi, इन सबको जब ऑक्सीजन चाहिए और उतना ऑक्सीजन बनाने वाले सिर्फ प्लांट्स हैं, तो you can imagine what the imbalance is. तो ये पूरा इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट. तो यू आर अवेयर अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. तो अभी एनवायरमेंटलिस्ट के एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि जो एमिशंस है, दैट्स द वर्ड दे यूज, एमिशंस मस्ट बी रिड्यूस्ड because carbon dioxide more than a limited concentration becomes a greenhouse gas and that is dangerous. ठीक है, that's a very important point. यहाँ तक समझा इंट्रोडक्शन अच्छे से? Okay, okay. So now the next thing that we have to see, अभी इस lesson में we are looking at this from the physiological point of view. Okay, तो अभी physiology के हिसाब से जब हम देख रहे हैं तो we have to understand properly कि what exactly is photosynthesis. It is not just one step reaction that we saw. It's a series of steps. Okay, कि plants ने ये process होता है naturally in the cells. Correct.
तो जब ये सेल्स में नेचुरली हो रहा है तो इट्स अ रिएक्शन गोइंग ऑन वन आफ्टर द अदर, एंड इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड you know very well that any reaction when it takes place it requires enzymes. तो enzymes क्यों चाहिए? What's the use of enzymes? You know what is an enzyme? रिएक्शन को फास्ट करने के लिए. That's the common thing which everybody says. The enzymes reactions को fast करते हैं. Is it necessary that they will always increase the speed of the reaction? Enzymes कभी slow कर सकते हैं reaction को? स्लो वाला एग्जांपल आया नहीं कभी हमें. Okay. See, enzymes को we'll learn that in detail in biomolecules anyways. But enzymes जो है we call them as biocatalyst. Okay. So biocatalyst का मतलब catalyst. You have learned in chemistry कि any substance or a molecule which does not take part in a reaction, but their presence will influence the speed of the reaction. So the correct word is influence. Most of the time it increases, but there can be a inhibitory effect also. ये enzymes का काम, ठीक है? So photosynthesis as a complete physiological process, it's not a one-step process. It takes place across a series of steps. तो हमें पूरा series अच्छे से देखना है कि कौन से reactions होते हैं, कहाँ होते हैं, and for each reaction what are the enzymes in it. ठीक है? So before we go to the reactions, first we should know where the photosynthesis takes place. So plant, we are talking about green plants. ठीक है? So green plants में पूरा plant kingdom हमने अच्छे से देख लिया. Now you are very well aware about it, right? So उसके green parts में, okay, most often it is the leaves. Okay, it can also be the sepals. ठीक है? It can also be the young stems, the petiole. ऐसे जितने green parts है plants के, जहाँ पर chlorophyll pigment present है. So in parts में there is a cell organelle which is called the chloroplast. Okay, green plants में there are organelles called as plastids which are present. हम लोग cell organization में detail में देखेंगे. Plastids अलग-अलग types के होते हैं. Chromoplast, leucoplast ऐसे करके. But the one which is very significant from photosynthesis point of view, that is chloroplast. So abhi is lesson mein, because we are talking about photosynthesis, let's understand the structure and the functions of chloroplast. Okay, the rest of the plastids and their details we'll learn that in cell organization. Okay, so talking about the chloroplast. So सबसे पहले basic idea about the chloroplast, the shape of the chloroplast cannot be always the same. Okay, we'll start from the lower plants. Okay, algae mein we have seen chlorophyta, you know that. Okay, algae mein there are various colors and the most common color is the green algae, one of the most abundant groups. So green algae mein उनके cells के अंदर chloroplast के अलग-अलग shapes possible है. So in the algae like Chlamydomonas, chloroplast is cup shaped. Okay, see this. Chlamydomonas में the chloroplast is cup shape. Can you see this? ये जो shaded part है वो chloroplast. ऐसे cup की तरह. Okay. Then in the algae that is Zygnema, you will find star shape या stellate chloroplast. दिख रहे हैं? Okay. ऐसे star like arms रहेंगे. उसको stellate chloroplast बोलते हैं. Similarly, in this Spirogyra, you can see spiral shape. Can you see that? ऐसे टेलीफोन के वायर जैसा दिख रहा है. ओके, उसको स्पाइरल, इसलिए इसका नाम भी है स्पाइरोगायरा. ओके, स्पाइरो मतलब स्पाइरल, गायरा मतलब क्लोरोप्लास्ट. ओके, यूलोथ्रिक्स उसमें देखना गर्डल शेप्ड. गर्डल का मतलब है जैसे
अपने पेल्विक बोन्स होते हैं, शोल्डर बोन्स होते हैं, उसका कैसा शेप होता है, उसको गर्डल बोलते हैं, बेसिन लाइक। ओके, तो उसको गर्डल शेप बोलते हैं। वी हैव अनदर लेसन कॉल्ड स्केलेटन एंड लोकोमोशन, उसमें सारे हड्डी पसली देखेंगे। ओके, तो हियर इट इज यूलोथ्रिक्स, गर्डल शेप। देन देयर इज अ algae called Udogonium in which it is reticulate. रेटिक्यूलेट का मतलब है नेटवर्क शेप। कैन यू सी द लाइंस, देखना नेटवर्क जैसा दिखेगा। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट, इफ यू टॉक फ्रॉम द एल्गे पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर ऑफ वेरियस शेप्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल रिपीट कर, क्लमाइडोमोनास, Chlamydomonas, जिग्निमा, Zygnema, Spirogyra, यस, Ulothrix, ऑडियो Odigonium, नहीं, इसमें ऑडियो, इट इज उडोगोनियम। Udogonium. यस, ठीक है, तो ये लोअर प्लांट्स का हमने देखा। ठीक है, देन सिमिलरली हायर प्लांट्स में अगर देखा जाए तो दे आर ऑफ मोस्टली वन शेप एंड वो है ओवल टू एलिप्टिकल शेप। ओके, लोअर प्लांट्स में अलग अलग शेप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द एल्गी। ठीक है, सो इट इज स्फेरिकल, ओवॉइड या डिस्क शेप इन हायर प्लांट्स। ठीक है, कमिंग टू द साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साइज के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इफ यू टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट्स, तो उसका लेंथ है 4 to 10 माइक्रोमीटर एंड उसका ब्रेड्थ है अराउंड 2 to 4 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स। ओके, ये याद रखना है। एंड इफ यू सी कंपेयर शेड लविंग प्लांट्स एंड सन लविंग प्लांट्स, वी हैव सीन बोथ ऑफ देम इन द फील्ड। बहुत सारे प्लांट्स थे जो ऐसे छाव में ग्रो रहे थे दीवार में इस तरफ, एंड बहुत सारे जो प्लांट्स खुले सन में ग्रो रहे थे। तो दोनों के सेल्स को निकालकर इफ आई ऑब्जर्व द क्लोरोप्लास्ट विद इन देम, I will see that the shade-loving plants, they have more number of chloroplasts in their cells as compared to the sun-loving plants. Can you tell the reason for this? क्या रीजन हो सकते हैं कि shade-loving plants में ज्यादा chloroplast हो? Moist environment रहता है इसलिए। या मॉइस्चर का मतलब ही नहीं है ना, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। See the amount of light, क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं एंड इन पिगमेंट्स को जरूरत है लाइट की। तो शेड वाले रीजन में और ओपन वाले रीजन में लाइट कहाँ पे ज्यादा मिलेगा? ओपन में ना। ओपन में। तो ओपन में बहुत सारा लाइट ऑलरेडी मिल रहा है। सो अगर क्लोरोप्लास्ट कम भी रहेगा तो दे आर एबल टू यूज लाइट वेरी एफिशिएंटली। बट शेड वाले रीजन में लाइट पहले से ही कम आ रहा है, तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, तो जितना अवेलेबल लाइट है वो पूरा यूज कर सकते। गेटिंग इट? दैट्स द रीजन। ये algae ज्यादा है। हाँ, एल्गे अबंडेंट है, एनीवेज वो लोअर प्लांट्स भी है ना, एंड उसमें बहुत सारे तो एक्वेटिक भी है वो। ठीक है, ये पॉइंट समझा सब? ओके, बट सर वो ओशंस में तो बहुत डीप में होते हैं ना प्लांट्स, तो उनका ओशंस कैसे में होता है? जो बहुत डीप में रहते हैं ना, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं रहते, एंड स्पेशली वहां ग्रीन प्लांट्स मिलते भी नहीं, बिकॉज ओशंस आर वेरी वेरी डीप, तो उतने लेयर्स अंदर ना लाइट जाता ही नहीं। ओके, तो जहां जितने लेयर तक लाइट पेनिट्रेट होगा उतने में ही ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे। इसलिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह वो ओशंस के सरफेस पे मिलते हैं। डीप रीजन्स में मोस्टली बैक्टीरिया जिससे मिलेंगे जिनको लाइट की जरूरत है, या कीमोसिंथेसिस करके प्रोसेस करते हो, नॉट फोटोसिंथेसिस। सो दे यूटिलाइज केमिकल्स एंड दे प्रिपेयर देयर ओन। ओके, ग्रीन प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर सकते। सो टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या है क्लोरोप्लास्ट में? देख, केमिकली अगर क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा जाए तो इट हैज गॉट प्रोटीन्स, it has got lipids, it has got chlorophyll molecules, ribosomes, RNA, DNA, vitamins and certain metal ions. ये सारे चीजें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट।
ओके एंड सबसे ज्यादा एज यू कैन सी दे आर प्रोटीन्स 50 to 60%, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर आई शो यू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर नाउ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका अपना डीएनए, मतलब इफ आई शो यू लाइक दिस नाउ कि अगर ये सेल है, प्लांट का सेल है सपोज, ओके, प्लांट के सेल में अपना खुद का न्यूक्लियस है which has got its own DNA and this DNA is controlling all the activities of the plant cell. न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। बट इसके साथ साथ इन इट साइटोप्लाज्म देयर आर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, बहुत सारे। ईच क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए। नॉर्मली दूसरे सेल ऑर्गेनल्स में अपना खुद का डीएनए नहीं होता, but only chloroplast and mitochondria. These two cell organelles are there which have their own DNA. तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के उसके खुद के फंक्शनिंग टू सम एक्सटेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय इट्स ओन डीएनए, बिकॉज इट्स द डीएनए प्रेजेंट विद इन अ क्लोरोप्लास्ट, इसलिए उसको बोलते हैं ctDNA। ओके एंड उसको दूसरा नाम है प्लास्टिडोम। दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है इट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियस। सम ऑफ द फंक्शंस इट इज एबल टू टेक केयर ऑन इट्स ओन, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, पार्शियली इंडिपेंडेंट ऐसे बोलते हैं। ओके ऐसे। तो टॉकिंग अबाउट द नंबर कि सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते। ओके सो एल्गल सेल्स अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। ओके बट इन द हायर प्लांट सी द नंबर, it can be around 20 to 100 and sometimes it can be also 300 per cell। ये दिख रहा है सेल्स कितने सारे क्लोरोप्लास्ट है। ओके तो प्लांट सेल्स में बहुत ज्यादा है, तो हायर प्लांट्स है उतना रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है फोटोसिंथेसिस का। करेक्ट, द मोर यू ग्रो द मोर यू विल नीड टू ईट फूड। व्हेन यू वर टाइनी, व्हेन यू वर दिस मच, यू यूज्ड टू ईट लेस, है ना। तो ये प्लांट्स का भी ऐसी है, एल्गे छोटे हैं तो एक क्लोरोप्लास्ट काफी है, राइट। टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन कि सेल के अंदर न्यूक्लियस इज सबसे बड़ा, तो बीच में एक वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसके साइड में एक न्यूक्लियस रहेगा। अदर देन दैट इन द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस्ड और यूनिफॉर्मली प्रेजेंट और समटाइम्स दे कैन बी इन द पेरिफेरी आल्सो। तो ये सेल के अंदर जैसे दिख रहे हैं they are uniformly present inside the plant cell, okay, and their presence, their number, the size, everything is governed by external factors। जैसे हमने अभी देखा शेड एंड ओपन सन, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, तो उसके हिसाब से इट इज डिसाइडेड। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है। ओके कमिंग टू दी एक्चुअल अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अभी एल्गे के बारे में हम नहीं बात करते, वी आर टॉकिंग अबाउट द ultra structure of the chloroplast in higher plants। okay so talking about the ultra structure, टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया, डायग्राम दिया है, डायग्राम्स अलग अलग मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स एवरीथिंग इज द सेम, दिस वन विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, वो भी देख लेना साइड बाय साइड। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यू नो, विल स्टार्ट फ्रॉम द आउटसाइड कि क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का मेम्ब्रेन है। Okay, see we are talking about eukaryotic chloroplast। Okay, काम करता हूँ, I will draw and show। तो एक एक पार्ट में बताता हूँ क्या है, then I will show you this diagram। ठीक है, see chloroplast is generally oval to elliptical ऐसे बताया था। Okay, I am trying to draw my best। Okay, तो यहाँ पे ये oval to elliptical chloroplast के दो membranes। Okay, there are two membranes। membrane मतलब कवरिंग। तो ये जो दोनों membranes है, we simply call them as outer membrane, inner membrane।
Okay, so I'll just write a short form out here. This is the outer membrane. Okay, and the inner one is simply the inner membrane. ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, देयर इज सम स्पेस, उसको बोलते हैं periplastidial space. Okay, we call it periplastidial because chloroplast is one type of a plastic. इसको बोलते हैं periplastidial space. ठीक है, and it is filled with a fluid. So what kind of a protection, shock absorber, whatever you say. Okay, now inside the inner membrane, ये जो space है अंदर वाला, there is a ground tissue present. एक gel like substance, a ground tissue. उस ground tissue को बोलते हैं, is called as the stroma. ठीक है, that ground tissue inside. So I'm not able to draw anything for the ground tissue, but you know कि वहां पर जो tissue present है, एक liquid type present है, उसको बोलते हैं stroma. In the stroma you will find this one, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का डीएनए मॉलिक्यूल. What was the name given to the DNA? ctDNA. Correct, we called it as ctDNA या plastidome. Okay, that is present. Along with that, this chloroplast also has got its own ribosome. तो राइबोसोम क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे, ये डिटेल्स हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं. बट क्लोरोप्लास्ट आल्सो हैज गॉट इट्स ओन राइबोसोम, ये याद रखना. ओके, इसके अलावा इन द स्ट्रोमा देयर आर दीज स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, दिस काइंड ऑफ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर. ऐसा लगेगा जैसे 1-2 रुपए के कॉइन्स ऐसा पूरे एक के ऊपर एक रखा है. Okay, this kind of a stack is known as, it is called as granum. It's called as a granum. Singular is granum, plural is grana. ठीक है, तो ये एक ऐसा stack हो गया which is called granum. Like that there are many such stacks inside the chloroplast. ठीक है, बहुत सारे इस तरह के stacks. All these stacks, the number can vary from one chloroplast to another, one cell to another. Okay, all these stacks inside the chloroplast, yeah, all these grana inside the chloroplast, they are connected to each other by these tube-like structures. ये जो इस तरह के tube-like structures है, इससे connected है. Okay, these tube-like structures which connects the grana, उसको बोलते हैं इंटर मतलब in between. Okay, inter what? Granum. So intergranal lamellae. Okay, we call it intergranal lamellae. Okay, and there are some such lamellae which is not connected as such to grana. Okay, जैसे ये वाला है. Okay, उसको simply हम लोग बोलते हैं fret lamellae. Fret lamellae. Okay, तो ऐसे बहुत सारे ग्राना you can draw and show. And talking about each granum, okay, अगर एक ऐसे ग्रानम को देखा जाए तो this one is ultimately made up of, अगर इसको मैं ऐसे zoom करके दिखाऊं, it looks somewhat like this.
Yes, देखिए, because we are talking about the ultrastructure like this, and ये जो lamellae इसमें से निकलते हैं वो ऐसे निकले this. So each part of this granum is called as a thylakoid. ये नाम याद रखना है, it is called as a thylakoid. ठीक है? So it's like many thylakoids make one granum. ठीक है? Thylakoid में there are different membranes around it, and inside the thylakoid there is something called as a reaction center. Okay? इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे reaction center, also called as quantazome. Reaction center, also called quantazome. Each quantazome contains many photosynthetic pigment molecules. 200 से 250 pigment molecules होते हैं, in which the most abundant pigment is chlorophyll. And chlorophyll के भी अलग-अलग types होते हैं. The most common type of chlorophyll present in every plant, it is chlorophyll A. उसी की तरह chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E. There are carotenoids, there are xanthophylls. ऐसे बहुत सारे pigments हैं. If you remember algae हमने पढ़ा था तो सब pigments के नाम आए थे, है ना? Fucoxanthin, phycoerythrin, phycocyanin, depends upon one species to another. But chlorophyll is the most abundant. Okay, वो सब present is quantazome. तो ये अभी structure समझा अच्छे से, ठीक है? So जो chloroplast का structure है, according to that, if there is a question, where is the chlorophyll pigment present in plant cell? So the exact address that you are going to give is, it is present within the reaction center or quantazome of every thylakoid of every granum present inside the inner membrane dispersed in the stroma of the chloroplast. ऐसे करके explain करना है. Now is it clear? ठीक है? उसके अलावा जो stroma है, in which you will find many other small and big granules. ये जो granules होते हैं stroma में, they are nothing but the starch granules. That is also found within the stroma. And no doubt, जो चीजें में यहाँ दिखेगा नहीं, but stroma also contains lot of photosynthetic enzymes present in, because ये enzymes ये reactions के लिए जरूरी है. ठीक है? पूरा ultrastructure अच्छे से समझा. This you can take a screenshot and keep it with you, because ये मुझे erase करना पड़ेगा. ये ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना होगा बाद में, ठीक है? हाँ. तो इरेज कर दो. हाँ, लिया मैंने स्क्रीनशॉट. Okay. Okay. So now you see the diagram which I was showing you earlier. Can you see all the parts? Thylakoid space, thylakoid membrane, stroma, DNA. Okay. Sometimes the thylakoid can be unstacked also. ठीक है? मतलब वो stack में नहीं रहेगा, individual thylakoid अलग से रहेगा. Okay. And ये है stacked thylakoid. And बीच के lamella. ठीक है? Similar things are given in the diagram of your textbook also. वो भी देख लेना. Now you're able to, वो 3D जैसा दिख रहा है टेक्स्ट बुक में जो, तो उसमें समझ में आ रहा है ना? Okay. See this. तो ये double unit membrane inside which there are many granum. You can see the intergranal lamellae. You can see how the thylakoids are placed. Each thylakoid is having its own membrane in which there are quantasomes, many of them, and each quantasome is containing the pigment system and reaction center. Now is it clear?
ओके, ये डायग्राम भी ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये सिंगल थाइलाकॉइड, उसका स्ट्रक्चर देखना, ये इतना डिटेल में एक्चुअली यू डोंट रिक्वायर, बट यस यू कैन टेक अ लुक कि इंटरग्रेनुल कैसे डेवलप होते हैं, लोग मेम्ब्रेन्स किस तरह से अरेंज है वो दिखा रहे हैं, उसमें प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है, दैट इज ईच थाइलाकॉइड। ओके, टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस, तो क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो देयर आर मेनी फंक्शंस एंड द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके अलावा the point is कि this photosynthesis that we are talking about, it is ultimately once a reaction which is a energy conversion reaction. Solar energy is converted into chemical energy. So chloroplast is the one which is absorbing the light energy and converting that into biological energy. So if you recollect food chain that we have discussed, उसमें प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स करके बोलते हैं। तो क्यों प्रोड्यूसर बोलते हैं? बिकॉज दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, एंड ये जो खाना बनाते हैं यूजिंग दिस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द नेचर, दिस फूड इज नॉट ओनली फॉर द प्लांट्स, it becomes a part of their biomass and becomes food for the other trophic levels also. तो हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाएंगे, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाएंगे, टर्शरी कार्निवोर्स दूसरे कार्निवोर को खाएंगे, डिकम्पोजर्स इन सबको डिकम्पोज करेंगे। तो दिस इज द बायोमास विच इज अवेलेबल टू ऑल, ये एनर्जी सब में जा रहा है, right? Similarly, now you will see something called production of NADPH2, evolution of oxygen, photolysis of water. ये अभी reactions हम इस lesson में देखेंगे, okay? But they are also taking place in the chloroplast, okay? This is also involved in production of ATP. ये दो molecules के नाम अभी हम देखेंगे, NADPH2 and ATP. ये photosynthesis में शुरुआत के part में पहले बनेगा, and in the next part these same two molecules are used, इसलिए इन दोनों को हम लोग बोलते हैं assimilatory power. Okay, then okay, ये reactions अभी जाने दो, we'll come to that. Yes, they are converting the glucose which is produced into different sugars and storing as starch. ये photosynthesis में खाना जो बनता है वो पहले ग्लूकोज है, but that glucose is not stored as glucose because that's a very simple molecule and a soluble molecule. तो अगर उसको ग्लूकोज के ही फॉर्म में स्टोर करेंगे तो ना चाहते हुए भी यूज हो जाएगा, इसलिए उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज स्टार्च, एंड देन स्टोर्ड इन दिस, so it becomes a reserve food material. Okay, simply chloroplast का chloroplast जो है ना, they are also organelles of pathogen defense. ये उसका माइनर फंक्शन कि अगर प्लांट के सेल में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, फंजाई, बैक्टीरिया या किसी से भी, so to some extent the chloroplasts are able to give that immune response to protect the plant cell. ये भी chloroplast का फंक्शन, okay, and this light reaction and all we will see in this lesson, ठीक है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग important organelle मानते हैं सेल के अंदर. Is it clear? Ultra structure of the chloroplast is understood properly. ठीक है, okay, so let's come back to the lesson now. तो अभी हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये सेल में होता किधर है. The site of photosynthesis is understood now. Okay, now talking about कि जैसे साइट्स के बारे में हमने देख लिया, ठीक है, so let's talk about the photosynthesis pigments also. तो क्लोरोफिल है करके हम जानते हैं, बट स्लाइट मोर डिटेल्स अबाउट दैट कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट द टू प्रिडोमिनेंट वंस आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ओके, इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला आई कैन गिव यू. ओके, क्लोरोफिल ए, डू यू नो द केमिकल फॉर्मूला? नहीं? Okay, you can take it down. C55
H72 O5 N4 Mg. That's a small formula. Okay, C55 H72 वो सबस्क्रिप्ट जैसे लिखना, यहाँ पे लिखना नहीं हो रहा. O5 N4 Mg. ठीक है. Similarly, chlorophyll B. इसका फॉर्मूला क्या है? सिमिलर है, C56 H70 O6 N4 Mg. क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B. ओके, ये छोटे फॉर्मूले हैं दोनों के, लर्न करना. In both of them, you are seeing one thing, कि which are the elements present in them? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, magnesium. तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बनाने के लिए in the chloroplast, the plants require magnesium element in the soil. तो प्लांट्स जहां पे ग्रो हो रहे हैं, अगर उस सॉइल में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? Chlorophyll formation will be affected, photosynthesis will be affected. And if you see the chlorophyll molecules, each chlorophyll molecule consists of two parts. Okay, there is a head portion which is called as a tetrapyrrole, which is called the porphyrin ring. Don't need to go into the details of that, just naam yaad rakhna hai. The chlorophyll molecule has got two portions, a head and a tail. Head portion of the chlorophyll molecule is called the porphyrin ring, made up of tetrapyrrole, and the tail portion is a hydrocarbon tail, which is called as a phytol tail, and the tail is attached to the head. ये दो नाम याद रखना है. Head is the porphyrin ring, tetrapyrrole, and tail is the phytol tail, made up of hydrocarbon. तो ये दो क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी याद रखना है, स्ट्रक्चर भी याद रखना है. ठीक है. Now, coming to other one. After chlorophyll, you have carotenoids. Okay, एक है chlorophylls, दूसरा है carotenoids. Now these are lipid compounds. Lipids मतलब kind of fats. Okay, these lipid compounds are present in almost all the higher plants and even many microorganisms. तो अगर chlorophyll green color provide करते हैं, तो carotenoids are able to provide these different colors: red, orange, yellow, brown. नाम में देखना, carotenoids, carrot, गाजर का कलर क्या है? So it is red, orange, yellowish. ठीक है. And they are also associated with chlorophylls. Two types of carotenoids are there, carotenes and दूसरा है xanthophylls. Okay, carotenes का फॉर्मूला है C40H56. छोटे छोटे एलिमेंट कंपाउंड हैं. Okay, C40H56 carotenes which are orange red, and xanthophylls में C40H56O2 जिसमें ऑक्सीजन. ओके, तो ये जो कैरोटीन्स, ये तो xanthophylls हैं, या क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ऑल द अदर पिगमेंट्स, इन सब का काम है कि जहां पर ये प्रेजेंट है, वेयर द प्लांट इज स्टैंडिंग इन लाइट, सनलाइट गिर रहे हैं, उस सनलाइट के वेव्स को पकड़कर उसका एनर्जी क्लोरोफिल ए को देना. आउट ऑफ ऑल दीज पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए is the most significant pigment present in plant cell. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एंटेना पिगमेंट, क्लोरोफिल ए. एंड बाकी सारे पिगमेंट्स को बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, because all the pigments, other pigments will catch the energy of the light, transfer it to chlorophyll A.
and chlorophyll A is the only one which can take the reaction forward. इसलिए chlorophyll A सबसे ज्यादा significant है. Even this carotenoids देखना, ये भी जितना एनर्जी ले रहे हैं वो ट्रांसफर करते हैं chlorophyll A. If you recollect the plant kingdom, हमने देखा था algae के बारे में, तो all the algae they were having chlorophyll A in it. Chlorophyta में chlorophyll A, chlorophyll B. Phaeophyta में chlorophyll A, chlorophyll C. C. करेक्ट. Rhodophyta में A and D. तो A तीनों में था, बाकी तीनों एक्सेसरी वंस, इसलिए वो ऑप्शनल है, किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा. ठीक है. सो ये अपना समझ में हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में बात. ठीक है. नाउ बिफोर वी गो इनटू द फर्दर डिटेल्स ऑफ द रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, अभी हमें ये भी देखना है कि because we are talking about photosynthesis, this is associated with something called light. So in physics you have studied about light. Don't worry, I'm not going to make you draw ray diagrams or something, but you know the basic concept of what is light. Light क्या है बता, scientific terms में. How will you explain what is light? Ray. Yes. Ray. Can you okay, can you classify light as a matter? No. Why? उसमें एटम्स नहीं होते, वो ऐसे लाइट ऐसे. करेक्ट, वेरी गुड. मैटर तब होगा जब उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइट में ऐसा नहीं है. सो देयर आर वेव्स हैविंग देयर ओन वेवलेंथ. सो वेव्स एंड वेवलेंथ में यू मस्ट हैव हर्ड दोस टर्म्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, क्रेस्ट एंड ट्रफ, वो सब पढ़ा होगा. आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स. Okay, but a word which we should understand over here, that is called wavelength. तो नाम में ही उसका मीनिंग है लेंथ ऑफ अ वेव. So when it completes one crest to one trough back to one crest, वो पूरा जो डिस्टेंस है उसको वेव लेंथ बोलते हैं. तो लाइट के अलग अलग जो कलर्स होते हैं, ओके, लाइक वी सी सो मेनी कलर्स अराउंड अस, ये लाइट के कलर्स हैं. रेनबो दिखते हैं, 7 कलर्स दिखते हैं. तो ये अलग अलग कलर्स का मतलब क्या है, अलग अलग वेवलेंथ्स. सिंपल, ईच कलर रिप्रेजेंट्स ईच वेवलेंथ. तो जो लाइट हमें नजर आता है, ओके, जो रेनबो के हम लोग 7 कलर्स जो बोलते हैं, विप ग्योर करके वर्ड यूज करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. तो वायलेट से लेकर रेड तक ईच वन इज हैविंग इट्स ओन वेवलेंथ. ये पूरा जो रेंज है वायलेट टू रेड, दिस कम्स अंडर विजिबल लाइट. ओके. बियॉन्ड वायलेट इज अल्ट्रा वायलेट, जो हम देख नहीं सकते. रेड के उस तरफ है इंफ्रा रेड, विच वी कैन नॉट सी. तो प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट का वेवलेंथ का रेंज जरूरी है, दैट इज द विजिबल रेंज फ्रॉम वायलेट टू रेड. एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज ये जो पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, they can absorb the light only of a certain wavelength. तो अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ जो है वो प्लांट्स एब्सॉर्ब नहीं कर सकते. इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है प्लांट्स कैन नॉट एब्सॉर्ब. तो प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा लाइट चाहिए, हैविंग अ विजिबल रेंज, दैट इज वायलेट टू रेड. तो वायलेट का इज समवेयर अराउंड 390 नैनोमीटर, एंड रेड वाला जो है दैट इज समवेयर अराउंड 640 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर. तो 390 nanometer to 660 nanometer approximately is the range within which plants can absorb and they can use for photosynthesis.
इसलिए उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है द रेंज ऑफ द वेवलेंथ। एंड यू कैन सी इन दिस ग्राफ ईच पिगमेंट कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ। जैसे यहाँ पे देखना क्लोरोफिल ए, ओके, ये इसका जो ये मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है क्लोरोफिल ए का, वो अप्रोक्सीमेटली कितने में आ रहे हैं, 400 से थोड़ा आगे, दैट इज 420 430 नैनोमीटर। So that is the wavelength where chlorophyll A can absorb maximum light. Similarly, chlorophyll B का जो peak है वो थोड़ा आगे है, 450 से भी आगे, तो से 470 और 470 480 ऐसा बोल सकते, वो क्लोरोफिल बी का पीक है। कैरोटिनॉइड्स उसका सबसे ज्यादा जो एक है यहाँ पर, यस, ओके, एंड सेम वे you can see the other pigments also. So every pigment is having its own peak of absorption, जहां वो सबसे ज्यादा absorb कर सकते हैं। Got it? Okay, तो यहाँ पे लिखा है देखना कि carotenoids they are mainly found in higher plants and they absorb mainly in the violet to blue region. Okay, वायलेट इंडिगो ब्लू रेंज है ना स्टार्टिंग में, VIB, तो वो रीजन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर प्लांट्स को मैं ज्यादा करके रेड लाइट दूंगा तो कैरोटीनॉइड ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। गेटिंग इट? ओके, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट है कैरोटीनॉइड्स का और एक फंक्शन क्या है ना कि समटाइम्स इफ द लाइट इज वेरी इंटेंस, ओके, तो इट कैन लीड टू ऑक्सीडेशन ऑफ द पिगमेंट इटसेल्फ। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो खुद ऑक्सीडाइज होकर डिग्रेड हो जाएगा। So carotenoids pigment prevent the degradation or the oxidation of the chlorophyll pigment also. जो क्लोरोफिल को लाइट चाहिए बट इतना भी नहीं चाहिए कि वो खुद डैमेज हो, so it has to use light at the same time make sure that it is not getting oxidized because of that same light. तो ये विजिबल रेंज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, विजिबल रेंज इज अराउंड 390 नैनोमीटर टू 730 नैनोमीटर। तो लेफ्ट साइड में एज यू कैन सी जो मैंने बताया ये अल्ट्रा वायलेट है, देखना है विजिबल इतना छोटा रेंज है, देख, ओके, उसके जस्ट पहले अल्ट्रा वायलेट, उसके पहले एक्स रे, उसके पहले गैमा रेज, तो ऑल दीज रेज यू कैन नॉट सी। तो कभी डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे करवा के लाना कर, तो उसमें अपने शरीर से ये वाला रेज पास करते हैं, एक्स रेज, ओके, and similarly on the other side beyond red you have infrared, radio waves, so जितना आगे जाएंगे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो उनके वेव्स का देखना कितना छोटा छोटा वेवलेंथ है, देखना, और यहाँ देखना बड़े बड़े वेवलेंथ। तो विजिबल लाइट का वेवलेंथ इज 390 नैनोमीटर टू 730 नैनोमीटर, एंड ये इसका लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करके। आर दीज वर्ड्स क्लियर? ठीक है, एंड जो लाइट है बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी हम बोलते हैं, ओके, एंड it's like there are tiny particles of light, not like matter, okay, जिसको बोलते हैं photons. Each photon is a quantum of light, energy packets करके बोल सकते हैं। तो photosynthesis में these pigments, that is chlorophylls and carotenoids, they absorb these photons and then they make use of that in photosynthesis. अच्छी तरह समझा यहाँ तक? नो कंफ्यूजन? ओके, ये वर्ड्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब द कर्व which shows the amount of light absorbed at each wavelength, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Okay, these definitions you have to remember. Okay, then there is something called action spectrum. Action spectrum क्या है कि
the amount of photosynthesis taking place at each wavelength is different. एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगा जहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके आगे पीछे कम हो रहा है, and beyond a certain range the amount of photosynthesis is almost nil. So the curve, okay, which shows the rate of photosynthesis at different wavelengths, उसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग है, एक्शन स्पेक्ट्रम अलग है. जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि विजिबल लाइट is the absorption spectrum for photosynthetic pigments, chlorophylls. But within that also violet से लेकर red तक सबसे ज्यादा जो efficient photosynthesis देखा गया है वो है red region या violet region. तो अगर सपोज मैंने कोई प्लांट लगाया एंड उसको मैं सिर्फ वायलेट लाइट दे रहा हूँ या ब्लू लाइट दे रहा हूँ, उसका फोटोसिंथेसिस अच्छा चलेगा. अगर सिर्फ रेड लाइट देता हूँ तो photosynthesis will be good enough. But out of all these colors, the least amount of photosynthesis will be in the green color. फोटोसिंथेसिस सबसे कम होगा अगर प्लांट्स को मैं सिर्फ ग्रीन कलर देता हूँ. So now you may have a question कि क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर है, तो क्लोरोफिल अगर ग्रीन कलर है और मैं प्लांट को ग्रीन ही दे रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा फोटोसिंथेसिस? What can be the reason? इसलिए देखना, यहाँ पे ग्राफ भी देखना, ग्रीन वाले रीजन में सबसे नीचे आ रहा है एंड वायलेट में ऊपर है, रेड में ऊपर है, दिख रहा है? That's the action spectrum. बिकॉज कैरोटीन को रेड ऑरेंज वायलेट वो कलर्स चाहिए होते हैं. हाँ वो चाहिए, वो दैट इज द पीक एज यू सॉ. बट ऐसा क्यों है कि ग्रीन में सबसे कम है? Why you seeing that difference? ग्रीन ग्रीन मैच नहीं होता. ग्रीन ग्रीन मैच नहीं होता. What do you mean by that? उसको दूसरा कलर भी चाहिए होता है, ग्रीन में ही नहीं रहना. इसको कपड़े थोड़ी पहनने हैं कि मैच करना है, चॉइस करना है. यस, ये इसका आंसर फाइंड आउट नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? व्हाई इज इट सो? द क्वेश्चन इज क्लियर ना? हाँ. प्लांट्स में सबसे कम एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस जो है, लीस्ट, दैट इज इन द ग्रीन रेंज. एंड व्हाई? बट सर रेड रेंज में एनर्जी कम होता है ना? नहीं, किसने बोला? वो इसमें भी है, वो लास्ट पेज में एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज द वेवलेंथ. absorption नहीं, electromagnetic spectrum of light. नो, इट्स नॉट द एनर्जी ना, ये तो वेवलेंथ है. इंक्रीजिंग एनर्जी भी है ना? इंक्रीजिंग एनर्जी, ओके, अच्छा, दिस वे. हाँ. इफ यू सी द वेवलेंथ ना, जितना वेवलेंथ छोटा होता जाएगा उतना उसका एनर्जी बढ़ता है. दैट इज करेक्ट. ओके, दिस वन यू आर टेलिंग है ना? हाँ. यस, तो करेक्ट है कि जैसे जैसे वेवलेंथ ज्यादा होता जाएगा एनर्जी कम होता जाएगा. बट जो एनर्जी लेवल वायलेट से लेकर रेड के बीच में है, within that energy is the maximum in violet and least in red. but ये visible range ही कितना छोटा है देखो. हाँ. okay, that is true, what you said is correct कि यहाँ रेड में जो है वो एनर्जी सबसे कम है बट विद इन द विजिबल रेंज. तो इसमें इतना ज्यादा, इतना में जो डिफरेंस आ रहा है दैट डजंट मैटर. बट यहाँ पर भी सेंटर में देखना ग्रीन कलर है, हाँ. तो एकदम सेंटर वाले पोर्शन में क्यों ऐसा है कि अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द लीस्ट? जो साइड मैच नहीं होता है, सेम सेम अच्छा नहीं लगता. could be possible, you tell. So try to find the answer. ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरह समझा? हाँ. ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स हमने देखा अभी तक कि फर्स्ट वी सॉ द इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ओके, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, राइट? इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है. we call plants as the autotrophs, है ना? they are able to prepare their own food. okay, then
that's the only process by which oxygen is released as a byproduct. Okay, then we saw the place or the site where the photosynthesis takes place. That's the chloroplast. तो हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में ऑब्जर्व किया राइट फ्रॉम द एल्गे टू हायर प्लांट्स with respect to their size, number, structure, position, distribution, etc. And we have seen the ultrastructure of the chloroplast. कि उसके अंदर क्या क्या चीज है. तो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्राना, thylakoids, quantasomes, reaction center, photosystems, and the different pigments of photosynthesis. इन पिगमेंट्स का लाइट के साथ क्या रिलेशन है दैट वी हैव सीन. तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. विजिबल रेंज इज द वन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. उसमें भी देयर आर डिफरेंट रेट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन with the maximum at violet and red and the least in green. यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया. ठीक है. Let me just do a brief introduction about the mechanism of photosynthesis. इसका डिटेल्स हम डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम करेंगे, है ना, बिकॉज ये सब रिएक्शन वगैरह एक साथ ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट. तो सी व्हेन यू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस पूरा जो प्रोसेस है ये दो फेजेस में होता है. एक है लाइट फेज एंड द अदर वन इज डार्क फेज. ओके, लाइट फेज एंड डार्क फेज, ऐसे दो फेजेस. तो दो फेज में जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लाइट फेज में व्हेन लाइट इज अवेलेबल द पिगमेंट्स आर देयर. सो दीज पिगमेंट्स दे एब्सॉर्ब द लाइट एंड दीज पिगमेंट्स जब लाइट के फोटॉन्स को एब्सॉर्ब करते हैं तो ये पिगमेंट्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, जो लाइट के फोटॉन्स हैं उसमें पूरा सोलर एनर्जी है. तो वो सोलर एनर्जी इन पिगमेंट्स में ट्रांसफर होता है एंड इन पिगमेंट्स में से very high energy electrons are given out. So high energy electrons when they are given out, वो electrons के energy को use करके अलग अलग steps में ATP energy पहले बनाते हैं. ओके, so जैसे light phase है, दिन में जब चल रहा है तो light है तब उसको use कर रहे हैं, ATP बना के रख रहे हैं, एंड उसके साथ एक और मॉलिक्यूल है called NADPH2, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन. ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल है. इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट जो नेक्स्ट डार्क फेज में जरूरत पड़ेगा. ATP इज द एनर्जी सोर्स, NADPH2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ये दोनों बनता है लाइट फेज में. एंड लाइट फेज में एक और चीज होता है दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O उसका ब्रेकडाउन होगा. हाइड्रोजन सेपरेट, ऑक्सीजन सेपरेट, दैट आल्सो टेक्स प्लेस इन द लाइट रिएक्शन. उसको हिल्स रिएक्शन करके भी बोलते हैं. विल सी द डिटेल्स. तो इन द लाइट फेज ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. ATP एंड NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड. इनको हम यूज करेंगे डार्क फेज. एंड डार्क फेज में ATP को यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, NADPH2 को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट, फॉर विच आई रिक्वायर अ हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन कौन देगा? NADPH2. वाटर नहीं, NADPH2. वाटर का जो हाइड्रोजन अलग से रिलीज हो रहे हैं उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो इलेक्ट्रॉन्स भी यूज करते हैं एज एनर्जी सोर्स. ऐसे करके देयर आर सीरीज ऑफ रिएक्शंस. So in the light phase you have to learn about something called photophosphorylation. Okay, जिसके दो टाइप है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक. फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट को यूज करके ATP का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. दोनों के पाथवेज है, we will see that. Okay, we are also going to see in the light phase something called the Hills reaction.
ओके, ये दोनों लाइट फेज में होगा. देन इन द डार्क फेज वी आर गोइंग टू सी समथिंग कॉल्ड कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल वो साइकिल है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनता है. तो इट्स अ पाथवे. साइकिल मतलब साइक्लिक प्रोसेस. तो कैल्विन साइकिल. एंड डार्क फेज में अगर कैल्विन साइकिल हो रहे हैं तो देर आर अल्टरनेटिव पाथवेज आल्सो अवेलेबल इन सम अदर प्लांट्स. ओके, किसी में कैल्विन साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द कॉमन वन. उसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड C4 पाथवे, CAM पाथवे, अलग अलग प्लांट्स में होता है, तो वो भी हमें देखना है. Then there is a concept of something called photorespiration that also we are going to see. फिर हमें स्टडी करना है what are the different factors of photosynthesis and how are they significant. कि photosynthesis के लिए क्या क्या substances चाहिए, but अगर वो कम ज्यादा हुआ तो क्या, that we will see. तो ऐसे करते करते बहुत सारे process. At the end we are going to see the significance of photosynthesis in detail. Okay, अच्छी तरह समझा? Yes, there's one more thing I would like to show you now. टेक्स्ट बुक में देखना, एक बॉक्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स का सेपरेशन. there is a technique called as chromatography that is done, जिसमें क्या करते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स का ना सेपरेशन करते हैं. I'll show you that. I have the procedure. तो मैं बताता हूँ. कैसे हमें पता है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स वगैरह, तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय वन प्रोसीजर. ओके, एक इंटरेस्टिंग प्रोसीजर मैं बताता हूँ. जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग दैट पीपीटी. यू नो व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? सुना है कभी? सुना नहीं, मतलब क्रोमैटोग्राफी मतलब क्रोमैटिन्स का होगा कुछ? नहीं नहीं नहीं. क्रोमो का मतलब है कलर. ओके, ओके, तो कलर्स को लेके कुछ करते करेक्ट. होंगे. वी सेपरेट. अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ना, इनका अपना अपना कलर्स है. हाँ. तो बेस्ड ऑन द कलर्स वी आर सेपरेटिंग फ्रॉम अ मिक्सचर. वो एक टेक्निक है जिसको क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं. वो क्रोमैटोग्राफी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. हम लोग उसके लिए फिल्टर पेपर जैसा एक सेपरेट पेपर आता है जिसको हाँ. क्रोमैटोग्राफी पेपर बोलते हैं. ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट सिस्टम. केमिस्ट्री में करते हैं ना ये? यस, इट्स अ प्रोसेस यू लर्न इन केमिस्ट्री बट यू यूज इट एवरीवेयर. हाँ. ओके, तो जैसे ये अभी प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ओके, तो मैंने कोई भी प्लांट मटेरियल लिया, उसका लीव्स का एक्सट्रैक्ट बनाया, in which I know that all the pigments are present. अब मुझे उन पिगमेंट्स को सेपरेट करके देखना है कि कलर्स के हिसाब से क्या है. एंड एवरी पिगमेंट, एवरी मॉलिक्यूल इज हैविंग इट्स ओन मॉलिक्यूलर वेट. तो क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल यह है कि मॉलिक्यूलर वेट जितना कम रहेगा उतना दूर तक वो रन करेगा, एंड बड़ा मॉलिक्यूल जो होगा वो कम डिस्टेंस पे रन करेगा. तो शुरुआत एक से ही करेंगे, बट देन देयर सेपरेशन विल बी डिफरेंट. So that process I will show you for chlorophyll. ओके. ठीक है, ये अच्छा इंटरेस्टिंग टेक्निक है, एंड आई हैव द टेक्निक, तो मैं बता ही देता हूँ. There is something called as a strip paper chromatography. I'll show that. Okay, because it's a part of this, तो ये भी देख ही लेते हैं ना. ये देखो, प्रिंसिपल क्या है पता है? दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी दैट यू कैन डू. इसको पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी या पेपर क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं. ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह का जो ग्लास है या एनी बीकर या तो एक फनल जैसा आता है वो ले सकते हैं. ठीक है, इन विच यू आर सस्पेंडिंग दिस पेपर ऑन विच यू हैव लोडेड द पिगमेंट्स. एंड इसमें बीकर में हमने लिया है समथिंग कॉल्ड सॉल्वेंट सिस्टम. तो सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो ऐसा सब मिक्सचर है कंपाउंड्स का जो उस पेपर के ऊपर रन कर सकते हैं. इट्स लाइक कभी सपोज कहीं पानी गिर गया
एंड उसके ऊपर मैंने न्यूज़पेपर ऐसे पकड़ के रखा, तो पानी कैसे ऊपर ऊपर चढ़ते हुए दिखते हैं, हाँ उसको रनिंग बोलते हैं। उसी तरह का प्रिंसिपल यू आर एबल टू सी हियर। तो ऐसे जब रन करता है ना, तो बिफोर दिस रनिंग स्टार्टेड मैंने इसमें ऑलरेडी इसका मिक्सचर लोड करके रखा है। तो जब ये सॉल्वेंट सिस्टम रन करेगा तो वो मिक्सचर को लेके रन करेगा। तो उस मिक्सचर में जो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो इस सॉल्वेंट के साथ दूर तक रन करेगा, एंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो थोड़ी दूर पे दम तोड़ देगा। तो दे आर गेटिंग हाँ, ये सेपरेट। मतलब वाटर कलर से भी कर सकते हैं ना, मिक्स करके लाइन बाय लगा दिया फिर दिखा के। ओके, तो क्रोमेटोग्राफी मींस हाँ क्रोमा मींस कलर एंड ग्राफी हाँ मतलब राइटिंग या सेपरेशन। तो उसका मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, ये जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज है, सॉल्वेंट सिस्टम है वो मोबाइल फेज। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है, इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम में मोबाइल फेज है बिकॉज द सॉल्वेंट इज रनिंग ऑन द पेपर। ओके, एंड वाटर molecules in the capillary pores they act as the support matrix. ओके, इतना टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली यू अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसेस, है ना। तो देख क्या करते हैं पता है, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसके लिए, कि यू विल रिक्वायर समथिंग कॉल्ड 80% एसीटोन, एंड मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिकल के लिए ना वी टेक स्पिनच लीव्स, बिकॉज इसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इसका क्रश करके आसान होता है वैसा। ठीक है, यू टेक मैग्नीशियम कार्बोनेट का पाउडर। ओके, ये जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट ये क्लोरोफिल्स का ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, दैट्स व्हाई यू ऐड दैट। ओके, एंड यू टेक क्रोमेटोग्राफी पेपर स्ट्रिप्स, इस तरह का मिलता है, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1। ओके, एंड द सॉल्वेंट सिस्टम यू रिक्वायर इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम, ईथर एंड एसीटोन इन द रेशियो 95:5। ऐसे करके एक मिक्सचर में तैयार करता हूँ। ठीक है, एंड देन ये मोर्टार पेसल, यू नो दिस, वो हाँ आयुर्वेदिक कुछ दवा है ना। कूटने के हाँ इसमें क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ओके, मसलिन क्लॉथ फिल्टर करने के लिए। हाँ ओके, एंड दिस काइंड ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद अ स्प्लिट कॉर्क इज रिक्वायर्ड। एक टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर इस तरह के कॉर्क लगते हैं, तो वो कॉर्क के साथ ये पेपर को अटैच कर देता हूँ। ओके, कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, एकदम बारीक बारीक ट्यूब्स रहते हैं ग्लास के, उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। एंड नो डाउट अ बीकर, फनल, एवरीथिंग यू विल रिक्वायर। ठीक है, तो पहले क्या करना है, स्पिनच का एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। कैसे करना होगा, स्पिनच के लीव्स को छोटे छोटे पीस में कट करके यू विल ऐड अ स्मॉल बिट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड 10 ml ऑफ एसीटोन। तो ऐसा लगेगा स्पिनच का चटनी बना रहा हूँ, बट वो एक्सट्रैक्ट है, एसीटोन है उसमें, राइट। तो वो डालने के बाद ये पूरा जो मिक्सचर तैयार किया उसको मसलिन क्लॉथ से फिल्टर कर, हाँ तो ओनली द लिक्विड पार्ट यू विल गेट। ओके, उस लिक्विड पार्ट का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, दिस इज अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। ओके, इसके अंदर रखने से क्या होता है, ये बहुत तेज घूमेगा, 5000 रोटेशंस पर मिनट। तो लिक्विड में जितने सेडिमेंट्स है ना वो नीचे सेटल हो जाएंगे। ओके, ग्राइंड जैसा। ग्राइंडिंग नहीं, सिर्फ घूमेगा, इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड। ओके तो कैसे गोल गोल घूमते हैं, जब रुक हाँ जाएगा तो क्या होता है, दिमाग ऐसा ऐसा हो जाता है ना एकदम। ओके, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सारा सेडिमेंट नीचे। so you are getting a very clear liquid, and that clear liquid is the filter. Okay, ऐसा एक्सट्रैक्ट मिलेगा क्लियर एकदम। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लांट एक्सट्रैक्ट को इस पेपर के ऊपर लोडिंग करना है। तो लोडिंग करने के लिए क्या करते हैं कि जो वॉटमैन पेपर मैंने बताया, फिल्टर पेपर, that filter paper, okay, on that you will with a pencil you will mark one place center पे, जहां मुझे लोड करना है। ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने तैयार किया उसको मैं ड्रॉप वाइज डालने वाला हूँ। वो ड्रॉप किससे डालूंगा, कैपिलरी ट्यूब से, बिकॉज वो बहुत छोटा अमाउंट है। बहुत ज्यादा डालूंगा ना तो क्या हो जाएगा कि इट विल बिकम अ बिग ब्लॉट नॉट अ स्पॉट। ओके,
It's like I will show you this way. ये देख ऐसा समझा, ये कैपिलरी ट्यूब है, यू कैन सी द एक्सट्रैक्ट इनसाइड, एंड ये स्पॉट है देखना। एंड पेपर को भी किस तरह से कट किया देखो, ये नीचे के पोर्शन से अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो इसका भी एक तरीका होता है, पता है कि कैपिलरी ट्यूब में एक स्पॉट मैंने डाला, जस्ट इसके ऊपर गिरेगा पेपर पे, इट हैज टू बिकम ड्राई फर्स्ट, थोड़ा ड्राई होने के बाद देन आई पुट द नेक्स्ट ड्रॉप उसी जगह पर। तो इसको लोडिंग बोलते हैं। दिस हैज टू बी डन अराउंड 6 to 8 टाइम्स, ताकि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द पिगमेंट्स यू आर गेटिंग ओवर देयर, ठीक है। एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दैट पेपर यू आर गोइंग टू पुट दैट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ऐसे। ये देखना, यहाँ मैंने स्पॉट मार्क किया था, और जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर मैंने सॉल्वेंट लिया, पेट्रोलियम ईथर एंड एसीटोन। तो इस तरह से इंसर्ट करना है कि पेपर का जो एंड पार्ट है, दैट पॉइंटेड टिप, ओनली दैट पार्ट शुड बी इनसाइड द सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है वो इसके ऊपर ऐसे रन करेगा धीरे 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 धीरे। तो जैसे जैसे वो रन करते जाएगा, you will see from this mixture of pigments the chlorophyll pigments are getting separated। तो पेपर के ऊपर मुझे 4 अलग अलग डायरेक्शन में 4 कलर्स दिखेंगे, they are the separated pigments। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऊपर तक आ जाएगा, तो वहां मुझे पेपर को निकाल देना, फिर उसको ड्राई करूंगा तो आई कैन एक्चुअली सी द कलर्स। कौन से स्टैंडर्ड में होता है? ये बीएससी में पढ़ा, ये देख, कैन यू सी द कलर्स? हाँ। So each color represents each pigment, एक chlorophyll A, एक chlorophyll B, carotene, xanthophyll, ऐसे। ये जो इस तरह का पेपर तैयार होता है ना सूखने के बाद, उसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राम। फिर इसमें से कैलकुलेशंस करते हैं। ये देख, क्लोरोफिल ए यहाँ मिलेगा, ओके, क्लोरोफिल बी उसके नीचे सबसे पहले, xanthophyll ऊपर। तो देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड आरएफ, रिलेटिव फ्लो करके बोलते हैं। यू कैलकुलेट ऑन पेपर इटसेल्फ, जैसे यहाँ पे मैंने लोड किया था और यहाँ सॉल्वेंट लास्ट तक रन किया था, तो ये डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ओके। और अब ये जो क्लोरोफिल ए का स्पॉट है, पेंसिल से उसका आउटलाइन मार्क करूंगा, आई विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम क्लोरोफिल ए टू द पॉइंट ऑफ लोडिंग। ये मेरा न्यूमरेटर होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सोल्यूट। तो क्लोरोफिल ए के लिए आरएफ का एक वैल्यू मिलेगा, क्लोरोफिल बी के लिए आरएफ का दूसरा वैल्यू मिलेगा, xanthophyll के लिए RF will be different। So each pigment will have its own RF value। ये देखो, ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। When you do it practically, it will be very interesting। Yes। समझा? And you write the results। इसका ये वीडियो लिंक है, you can observe this practical। समझ में आएगा? Okay, you will get lot of such live practical demonstrations। कभी देखना YouTube में, ठीक है? कैसा लगा? अच्छा था, है ना। तो प्लांट फिजियोलॉजी के जब प्रैक्टिकल्स करते हैं ना तो बहुत मजेदार होता है, बिकॉज यू गेट टू सी लॉट ऑफ रिएक्शंस एंड ऑल व्हिच आर हैपनिंग। और ये सब प्रैक्टिकल्स की वजह से हमें पता चलता है ना कि अच्छा ऐसे भी पिगमेंट्स हैं एंड इनके ऐसे कलर्स हैं, दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर। सो क्रोमैटोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। बहुत सारे पिगमेंट्स का सेपरेशन, इवन जैसे एप्पल जैसे फ्रूट हो गए जिसमें बहुत सारे शुगर्स हैं, तो यू हैव ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, उन शुगर्स का सेपरेशन कर सकते हैं। प्रोटीन्स में से अमीनो एसिड का सेपरेशन कर सकते हैं। सो क्रोमैटोग्राफी इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक। तो अभी जो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया, इट वाज रेलेवेंट, इसलिए मैंने वो भी दिखा दिया। ठीक है, कैसा लगा? बहुत अच्छा था, है ना? यस, सो आई होप यू गेट टू डू इट प्रैक्टिकली सम टाइम। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखना, इट इज गिवन। मैं इसलिए देखा तो मुझे याद है कि एक्टिविटी करके, यस, है ना, कहाँ पे दिया है? यस, ये देख, एक्टिविटी 2।
that is chromatography. ठीक है? Right? So I guess हाँ. we can stop here for today. So basic हाँ. concepts is clear. Abhi actual reactions, how the process takes place, everything we can do in detail in the next session. Okay? हाँ. I think maybe 1 or 2 terms and अपना ये lesson भी खत्म. हो जाएगा. Okay? अच्छे से समझाना लेकिन because ये concepts बहुत जरूरी. हाँ, समझा. Okay? सब keywords जो highlighted points बताए सब learn कर लेना अच्छे से. Revise. हाँ. ठीक है? Yes.